Very good evening to everyone. Yes, Hans, bolo. Hello, can you hear me, sir? Hello. Yes, 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 yes. So Kotak Bank daily. इसमें से थोड़ा ऊपर आओगे? इसमें से 1935 was a recent low. 51 का 1935 was a recent highlighted low, which was traded on the lower side on 14th. On 15th, sir, 15th, sorry. On 12th itself. No, sir, but in this, the snake only came at 13, na, sir? Multiple snakes. On 12th also multiple snake is there, no? Okay, sir, but like if you, we'll come to know at From the end of. 4th is there. Okay. From 4th January, so multiple snake is occurred on 11th itself. Okay, sir. So even if we consider on 12th, okay, so then we should consider 12th quota traded on the lower side. We can consider from 11th itself. Sometimes multiple snakes trades lower side along with recent low. So we need not wait for third snake. 2 snake is enough. Okay, sir. Sir, so now when we look at it, so if it's, we should consider PCS of 11th only, that is PCR of 11th, correct? For a, when we are looking at the stop loss, it should be 1955 traded on the higher side, correct? But this 1935 which we are considering is low, this will correct it later. That is not the low to be considered. But even if you are considering this 1935 as recent low, it is traded on low side on 12th January, you know. Yes, sir. I said 12th January only, but you sir showed on 11th ना कि 11th को भी हो गया था. Okay, sir, 12th, sir, 12th. Sorry, okay. I'm saying 12th. multiple snake has occurred. Multiple snake has occurred on 11th itself. But Correct, the sir. recent low, which we are considering 1955, is traded on lower side on 12th. Oh, okay, sir. It has traded on low side on 12th. Okay. So 12th का 1921 is the PCR. That should trade on the higher side as my stop loss. Correct? Yes, that now prices are falling. When it will continue to fall further, it is already falling only. So it will stop falling and start rising when 1921-60 trades on higher side. Got it, sir. Got it. Actually, the mistake I was making was. No. Here, okay, tell me. So what I did, sir, I didn't consider on 12th and 13th को ना marginally trade करा था वो. 13th को 1877 जो है ना, वहाँ पे it was marginally trading below. So I waited for one more time to trade. So 15 को जब 1854 हुआ ना, तब I considered that it has traded 1935 on the low side. So that is why I took one. If you are considering 1935, it was traded on lower side on 12th itself. Yes, now yes, I want correct. to correct. Now I want to correct something. What we have learned is recent low means not this 1935. This low is worked because of
some other reason where we'll have to learn something extra, which I don't want to include now. What we have learned so far is So a ladder should a come low after that. 1886 should be the low. We have to consider, not 1935. हाँ सर, तो 1886 सर 15 को लो साइड ट्रेड हुआ रहेगा. माय बैड सर. 1886 तो Now let us come to 1886. This 1886 was traded on lower side on 13th January, but it was नहीं, traded marginally. I recollect. Yes sir, it was correct. Only traded marginally, so we had avoided this. Okay, let it trade convincing. The one who is trading, उसका message भी आया था. I will wait 1877 to trade Convincingly, yes sir. convincingly, which was traded on 14th January 77 के नीचे दिखा. सर बट वो आईसी जोन में है ना सर. It is traded only 13th January को. Okay. Now, to see what it should, we should see the price trading below 1877, जो पूरा दिन नहीं दिखा उस दिन. हाँ सर, 13th correct. January. It is traded Okay. only, but practically speaking, it is not traded. Practically, it will trade when it trades below 1877. फिर एक और drifting cell लेने की जरूरत नहीं है. This is what I am trying to say. Anything, whatever is traded, consider it as traded. If it is not decisively traded, allow that low to trade once again. ठीक है, got it sir. So now sir, since it has already traded on 13.1, so we should take as 1902.55, correct? PCR of 13.1 as a stop loss. 13th January PCR is not stop loss. 13th January PCR, when it has occurred, view for selling will hold good until it is trading below 1902.55. Correct. 13th January PCR. That is not our stop loss. That is view for selling is intact until 1902.55 is not traded on higher side. And Okay. whenever 14th January, 13th January it has occurred. Yes sir. So on occurrence period, any positional trading, passive trading, whatever trade is there, once it occurs, we square off on same day, right? Yes sir. And we know that prices will continue to fall further when 1865 trades on lower side. Prices will stop falling, start rising only when 1902.55 trades on higher side. Correct. So he is very, very new. So I didn't guide him because I don't want to disturb him. Let him trade the way he's trading. He waited for 1877 और उसका message भी आया. But you understand, when we 13th January, prices will continue to fall further when 1865 trades on lower side. Prices will stop falling and start rising when 1902.55 trades on higher side. So can't we initiate 14th January itself? Now in this same last 2 minutes, you said 4 times. 1902.55 is resistance. 1902.55 is resistance. So 14 January को भी बिक रहा था. हाँ सर, correct. 14 January को भी बिक रहा था. It was available. Maybe बेचना चाहिए. We need not wait for 1877 because it is traded. Only thing is it is not decisive, so we are not able to initiate for practical discipline. Correct sir, got it sir. Okay. So sir, now since another recent low has come at 1838, so still is the view intact, or still sir, should we hold or should we square off now sir? Prices stopped rising and started falling. Who triggered the fall? 1886. Yes sir, 1886. And what is the first resistance was 1902? 1902, yes sir. Until 1886 is not traded on higher side, along with a ladder. Any reversal from there, we have to keep selling. Considering it also will be traded. ठीक है sir, got it. Actually, और positional trading, passive trading में जाएंगे ना, और positional trading, passive trading में.
ये आप करना नहीं है अभी, बट ध्यान में रखना, हु ट्रिगर्ड द फॉल? 1886. So below 1886 it is selling only, right? Right. Okay. ओके, तो उसके पहले, उसके बाद में जो टॉप था 2027, Hmm. अगर मैं पोजीशन ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोटक बैंक में इन्वेस्ट करना है, Hmm. तो दिस सेलिंग व्यू is intact until 2027, is not traded on higher side along with BDP of that particular plan, fresh support in RC along with BDP closes with PCS along with 2027. Okay. Okay, sir. तो Got it. जो भी रिसेंट लो ट्रेड किया है, तो Hmm. इसका रेस्पेक्ट नहीं रहा 2027 का। ये समझ रहे हो? हाँ सर. और ये समझ सिर्फ दो सेंटेंस में ही है कि प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम हियर Yes, sir. एंड वेंट अप टू 2027. Hmm. Now from where prices stopped falling and started rising, that same low is traded on lower side. Yes, sir. Low side. 5% मिलने के बाद में भी कभी भी वापस 2027 आ सकता है ना, कभी भी एक बार तो आएगा, आज नहीं तो 15 दिन आएगा. बाद, महीने भर। Hmm. तो जब भी 2027 आता है एंड एनी रिवर्सल फ्रॉम देयर, जो भी लो आया होगा, एज ऑफ नाउ 1838 लो है, कल शायद हाँ. 1720 हो सकता है, 1750 हो सकता है, तो सीधा Hmm. 2021 से 2000 1750 या जो भी लो बनाया हुआ है, Hmm. बिकॉज इसका रेस्पेक्ट ही नहीं रहा इस स्टॉक का। Hmm. Correct. इस स्टॉक का रेस्पेक्ट कब रहता? ये अगर 2027 ट्रेड कर लेता तो ये 1886 है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता, बट सी 2027 इज नेवर ट्रेडेड, Right. इंस्टेड 1886 is traded on lower side. कोटक Okay. बैंक का ये कैप हो गया, कैप 2027। Okay. ये ठीक है सर. थोड़ी Understood. डीप समझ है, बट ये अगर समझ डेवलप कर ले, मैं पहले रिसेंट हाई रिसेंट लो स्मॉल स्मॉल स्टेप से करा रहा हूँ, Hmm. फिर यहाँ तक जा पाएंगे तो उनको वहां तक भी लेके जाएंगे। बहुत सिंपल है, टॉप ट्रेड कर लिया तो बॉटम Hmm. सपोर्ट हो गया, बॉटम ट्रेड कर लिया तो टॉप रेजिस्टेंस हो गया, दो सेंटेंस ही है। अभी 1935 ट्रेड कर लिया लोअर साइड, हाँ. हाँ सर, ट्रेड कर लिया. तो 1984 का कोई इज्जत ही नहीं रहा। सर नाउ कैसे समझा नहीं? Because 1935 was traded on low side. हाँ, so this 1984 has become strong resistance. So but 1984. Okay, so 1984 we'll not consider 2027 now. We'll consider 1984. ट्रेलिंग रेजिस्टेंस, Hello. पहले जब भी बढ़ेगा तो पहले 1984 आएगा कि 2027 आएगा? 1984. हाँ, तो 1984 इज आवर ट्रेलिंग रेजिस्टेंस। ये 5% ठीक. से ज्यादा लेना हो उनके लिए है। ठीक है सर. Got it sir. और देखना इसका पावर, जब भी 1984 आवे, जब भी Hmm. 2027 आवे, जब भी आवे, आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 15 दिन बाद, जो भी आवे, you just see any reversal from 1984, it will not be easy to trade this on higher side. अभी 1838 है, तो समझ लो कि 1838 ट्रेड कर लिया लोअर साइड, so Hmm. there will be one high will be here, maybe it may be 1890 or 1924 or 1902, we don't know. Ultimately how to पूरी चाल कैसे पकड़नी ना, वो मैं बात कर रहा हूँ। Hmm. लेकिन हम ठीक. लोग यहाँ पे अगर होंगे, छोटी सी बात Hmm. भी स्नेक से चल रहा है, तो प्रीवियस लेडर जो है उसका लो 1886 लेना है, ये Hmm. 1935 नहीं लेना है। 1935 सिखाया नहीं, ले सकते हैं बट वो सिखाया नहीं है, वी शुड Hmm. टेक 1886। फिर सेकंड Hmm. बात, 86 आता यहाँ है. पे ट्रेडिंग है,
यहाँ पे ट्रेडेड तो है, बट आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग बिकॉज इट इज नॉट ट्रेडेड डिसिसिवली, बट ट्रेडेड। तो उसका पीसीआर क्या हुआ 1902। तो ये 19 हम्म नॉट मुझे 1877 के नीचे नहीं बेचना है, हम्म 1877 का नेक्स्ट लेवल विद फॉलो अप रेजिस्टेंस नहीं बेचना है, 1905 में बेचते हैं। ये मैं समझा सकूं हम्म तो ये लेवल पे जा सकेंगे। हाँ सर, समझ गया सर, गॉट इट। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल आपके लिए। तो जितना आप वेरी जो जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, 13 जनवरी को प्राइसेस आर राइजिंग और डिक्लाइनिंग, when it will डिक्लाइनिंग। continue to decline further, BT65 trades on lower side, when it will stop declining and start rising, when 1902 trades on higher side। आप खुद हाँ 4 सर। बार बोल रहे हो 1902 रेजिस्टेंस, 1902 रेजिस्टेंस आप खुद ही बोल रहे हो, but still you are waiting for what 1877 to trade on lower side, that too with one resistance। क्यों? हाँ सर, मेरा मतलब मैं क्योंकि वही अपने को अभी कंफ्यूज। बहुत हम्म करना है। आई एम नॉट सेइंग इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दिस दैट हम्म और नॉट। ये पूरे डिस्कशन के साथ मैं एक बात हम्म हाईलाइट करना चाहता हूँ हम्म कि हमको अभी इसमें काफी एक्सपर्टाइज लेनी है, प्रैक्टिस करके, केस स्टडीज करके, कुछ ट्रेड्स लेके। देन नो 1902 दिखेगा अपने को, सर, 1877 नहीं। यस सर, सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट हियर सर, कि सर मैंने केस स्टडीज तो प्रीवियसली काफ़ी किए मैंने 2018 से ज़्यादा के, बट ये जो समझ है वो शायद आपने छोटे क्वांटिटीज में ट्रेड लेते हो तभी डेवलप होगी। दैट इज माय पर्सनल फीलिंग। देखो, हिस्टोरिकल केस स्टडी आप करते हो तो हम्म लिख के करते हो या खाली देख देख के करते हो? नहीं सर, सो आई गो देयर एंड मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज में हाउ डिड बिहेव। आई ट्राई Reading it एंड over, मुझे क्लियर सॉरी। जवाब दो, क्योंकि आप हाँ। एफर्ट्स कर रहे हो, आप हम्म एफर्ट्स कर रहे हो तो दोस एफर्ट्स शुड वर्क इन राइट डायरेक्शन। तो मुझे हाँ छोटे सर। से सवाल का जवाब दो, आर यू जस्ट रेफरिंग इट और राइटिंग इट डाउन? नो सर, आई एम राइटिंग इट डाउन, आई हैव द एंटायर रिकॉर्ड सर। ओके, राइटिंग इट डाउन। एक और बात जो शायद सबको समझ में नहीं आएगी, लिख के करते हो कि एक्सेल में करते हो? सर एक्सेल में करता हूँ सर। लिख के करो ना, 25% ही करो, जितना होमवर्क करते हो ना हाँ। उसका 25% ही करो, लिख के करो। अच्छा, ठीक है सर, आई स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। मतलब आई फील सर देखो, एनालिसिस के लिए। और फिर यहाँ पे वेबिनार में है ना, शेयर करना हाँ। कि व्हाट डिफरेंस इट इज इन प्रिपेयरिंग एक्सेल शीट एंड राइटिंग इट डाउन मैन्युअली। ओके सर, आई स्टार्ट इसमें राइटिंग इट कोई डाउन। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए अपने को, कोई हैंडराइटिंग अच्छी है तो नहीं चाहिए, बस वहां पे लिखना होगा 1902.55 रेजिस्टेंस है। फिर वहां हम्म पे लिखना होगा कि 14 जनवरी को 1902 आया, 15 जनवरी को 1902 आया। ठीक है राइट सर, योर चलेगा। ऑब्जर्वेशन। एक्सेल नो, वी कैन नॉट राइट आवर ऑब्जर्वेशन। इन एक्सेल ओनली हाँ वी कैन राइट मैथमेटिकली। ऑब्जर्वेशन लिखो, क्या ऑब्जर्व किए एक एक दिन। जैसे अगर मैं ट्रेड में हूं तो हाउ आई विल बिहेव, द सेम वे हिस्टोरिकली इट शुड बी डन। एंड सेकंडली जो आपने कहा ट्रेडिंग करना होगा, तो ये ध्यान में आएगा 1905 वगैरह। हाँ सर, मतलब ये आपने जो बोला वो मैंने स्मॉल क्वांटिटी लिया था एकदम, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड के हाउ, मतलब रियल टाइम में कैसे होगा ये। वो हिस्टोरिकल स्टडी पे आप ऐसे भी वो हो चुका है, तो यू जस्ट नीड टू रेफर टू कर रिकॉर्ड्स। रहा हूँ, समझ के लिखना है। ठीक है सर, मे बी आई स्टार्ट राइटिंग इन अ बुक। तब तक मैं जितना भी स्टडी करता था एक्सेल में ही करता था हमेशा। इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन, इनिशिएशन, स्क्वायर ऑफ रीइनिशिएशन उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम हमारे हाथ में ट्रेड रहता है ना, तो एग्जीक्यूट एक हम्म मिनट में होता है। बराबर है? हाँ सर। यस। ऑब्जर्वेशन 24 घंटा चलता है। हम्म। हिस्टोरिकल केस स्टडी करते हैं ना, हम्म तो उस समय एग्जीक्यूशन से ज्यादा, एग्जीक्यूशन तो लिखना ही है हाउ इट इज बिहेव, बट वो ऑब्जर्वेशन करना है कि ट्रेड इनिशिएट होने के बाद में हाउ इट इज बिहेविंग। तो ये सब ध्यान में आ जाएगा। हाँ यार, रेजिस्टेंस तक आया, 2 दिन तक बिक रहा था, कितना मस्त।
करेक्ट। राइट सर। और अभी भी 1838 से 1890 आ रहा है, तो वो समझ में आएगा एक दिन का। क्योंकि हम जब ट्रेड में रहते हैं ना, तो पूरा एक दिन उसके साथ जीतते हैं। यस और नो? यस सर। हर दिन उसके साथ जीतते हैं, जो भी हाथ में पोजीशन है। यस और नो? अग्रीड। यस सर। जैसे जब हिस्टोरिकल स्टडी करते हो ना, माय डियर फ्रेंड, तो कम से कम 5 मिनट तो एक दिन के साथ रहो। क्योंकि आगे जाके मुझे 24 घंटा रहना है। हम्म 5 मिनट तो रहो एक दिन के साथ, एवरी डे के साथ 5 दिन तो रहो, 5 मिनट रहो, ओनली 5 मिनट्स। अपने कोई मैथमेटिकली फटाफट फटाफट लिख के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना नंबर ऑफ ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, ये सब वो सब थोड़ी है। वो तो सब कोई भी कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात नहीं है। वो तो हम्म। अकाउंटेंट जैसा काम। अकाउंटेंट तीस ठीक है लाख का सर। चेक बना लेता है, हमको मालूम ही नहीं कि वो 30 लाख का चेक का क्या वैल्यू है। वो खाली 30 लाख का चेक बना के साइन करा के चला जाता है। अपने को मालूम है कि 30 लाख रुपया क्या मायने रखता है। ऐसा ना, इट इज फॉर हिम, इट इज ओनली ए चेक। फॉर हिम हम्म इट इज ओनली वर्क। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, समझो। फॉर हिम, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहते हैं, वो लोग जो काम करते हैं उनके लिए, बैंकों में जो लोग काम करते हैं, बड़े बड़े हिसाब संभालते हैं, उनके लिए एक काम ही है। तो अपने को काम थोड़ी करना है, अपने को तो इसके साथ जीना है। क्योंकि ट्रेड के साथ जिएंगे। हिस्टोरिकल भी स्टडी करते हो, 25% करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन बी विद दैट ट्रेड एवरी डे फॉर 5 मिनट्स, तो टेम्परामेंट बन गया। ठीक है सर। गॉट इट सर। ठीक है। सर अभी अभी से अगर हाथ में पोजीशन होगी तो वी शुड होल्ड ना विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1902। यहाँ पे 1902 से, हाँ, अपना व्यू है ना, 1902.65 के नीचे है, तब तक सेलिंग का ही व्यू है। ठीक है सर। लेकिन डन सर। यहाँ से जब रेजिस्टेंस मिलता है ना, जैसे एक अपर बैंड ट्रेड किया, या तो स्क्वायर ऑफ करो, या तो 1902 देखने की तैयारी रखो। एंड वन मोर थिंग, हम्म ये आपने जो कहा उसका जवाब मैंने दे दिया। लेकिन पीसीएस पीसीआर में अगर हम थोड़ा और एक्सटेंडेड लेवल पे बात करते हैं, थोड़ा और हम्म। एक्सटेंडेड लेवल पे बात करते हैं, तो कंप्लीट अराउंड अकर हुआ, हाँ सर अकर हुआ। मतलब जर्नी कंप्लीट। जर्नी कंप्लीट। ये बात हमने बहुत बार की है। हाँ सर। जर्नी कंप्लीट। नाउ प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर when 1845 trades on lower side। when prices will stop falling and start rising। 1874 trades on higher side। तो हमको मालूम ही है कि एक बार तो 1845 ट्रेड करने के पहले 1874 आएगा। हम्म। मालूम ही है बट ना। सर अभी से दोनों हो गया मतलब 1845 भी लो साइड ट्रेड हो गया, 1874 भी हाई साइड ट्रेड हो गया। 1845 15 जनवरी को हमको ये क्या करना चाहिए, जब कंप्लीट राउंड इज अकर्ड, वी शुड हम्म स्क्वायर ऑफ एंड डी इनिशिएट व्हेन 1845 ट्रेड्स ऑन लोअर साइड। और ये अभी नाउ 1902 है। ये आपका जो भाव है ये एकदम इंटैक्ट है, क्योंकि हु ट्रिगर्ड द फॉल, एक ही बात को पकड़ के रखो। हु ट्रिगर्ड द फॉल? so get the fall was 1886 trading on the lower side। दैट्स ऑल। जब तक 1886 के नीचे है, तब तक सेलिंग का व्यू इंटैक्ट रखो। एनी रिवर्सल फ्रॉम दैट बेचना ही है, ठीक है सर। गॉट और इट। सेलिंग में ही ओके। रहना है। ठीक है और ये सर। 1984 2022 समझ में आया हो, देखना। हम्म नहीं समझ में आवे तो जब भी 2 महीने के बाद जब भी आएगा, वी डोंट नो व्हेन इट विल कम, बट जस्ट टेल मी हाउ इट इज बिहेविंग 1984 एंड 2027। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। प्लीज 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 डू नॉट फ्रेम योरसेल्फ। थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के, थोड़ा अभी तो कितना कुछ समझ जो है कंप्यूटराइज कर दिया। मुझे तो है ना, आई वांट टू थैंक एवरी डे, एंड आई एम थैंकिंग एवरी डे ऑल दोस 60 पार्टिसिपेंट, जितने भी सीनियर्स है,
वो कॉपरेटेड विथ मी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उन्होंने इतना अच्छे से कॉपरेट किया और शिक्षा में आज भी है। जब डेट, हाई, लो, क्लोज मैन्युअली लिखवाता था, रेंज करवाता था, डायरेक्ट पैटर्न मैन्युअली कराता था, उसमें ट्रेडिंग प्लान मैन्युअल बनवाते थे, बीडीपी डब्ल्यूडी की जेलोपी पोस्ट करवाते थे, टीवीएचएस टीवीएस लिखवाते थे, बाप रे। और फिर धीरे 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 वो थियरी बनवाते थे, ट्रेंड थियरी कैप, जो उनको जो समझ में आता था वो एक साल में यहाँ पे अभी 1 डेढ़ 2 महीने में हो रहा है। तो वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। बहुत बहुत इसका जितना ज्यादा परसेंटेज उतनी समझ ज्यादा, बस इतना समझ लो। Why we have to restrict ourselves in 5%? तो ये कम से कम 2-3% में से 5% तो लेके आऊं, वो सोचता हूँ। पूरी चाल लेने की सोचो। वी डोंट नो दैट चाल कैन बी 5% also, 50% also, or maybe 10% loss also. We don't know. But पूरी चाल जो है वो लेनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए, सीखने कम से कम। हाँ उमेश बोलिए। Good evening, sir. Hello. उमेश Hello, sir. Good evening. बोलिए बोलिए। सर वही MGL का डाउट था। डेली I'm not able to hear you. सर MGL डेली। फोन कर लो। हाँ एक मिनट। कौन से? हेलो। हाँ सर। MGL होगा। हाँ सर MGL डेली। बोलो। मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, MGL स्टक हो गया स्क्रीन। ओके सर MGL में ये SNR टू, एक मिनट समय मेरे यहाँ पे ओपन करता हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ इशू। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो। बस बोलो। यस सर। सर MGL में आज ये 15 को SNR टू सेल इन एक्शन हुआ है एंड 18th को वो आपका 15th वॉइस का ब्रेक हो रहा है, PCDS फोन भी। कर लो। उमेश आपका वॉइस ब्रेक हो रहा एक है, मिनट फोन सर। कर लो। ओके सर। फोन करो मुझे, तब तक मैं किसी और को अटेंड करता हूँ। हाँ चित्तरंजन बोलो। हेलो। एक मिनट चित्तरंजन। हाँ उमेश बोलो। हम्म हम्म कौन सा कॉन्सेप्ट है? अरे नहीं वो है ना, थोड़ा लॉजिकल। मैं बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ 13 जनवरी को स्टॉक सेल इन एक्शन हुआ है, 15 को। हम्म
समझाना मुझे भी सोचना पड़ेगा, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। वेट, फिर बाकी सबको भी समझाना है ना, तो ट्रिकी है। देखो, फॉर एवरीवन, 15 जनवरी को स्टॉपर यूज्ड टू सेल इन एक्शन हैज कम एंड PCDS इज 1068.30। ये यहाँ पे लो साइड 18 को ट्रेड कर भी लिया है, फिर भी हम लैंडिंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमको इस भाव में जाना होगा जब वो 1068 के आसपास चल रहा था पहले भी, और जहाँ पे वो लैंडिंग रनवे दिखाया होगा 1068 का भाव। यहाँ ये सब सिखाना नहीं सीखना चाहता था मैं, क्योंकि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी बात निकली है तो बता दूं। यहाँ पे जब स्टॉपर यूज्ड टू सेल इन एक्शन था, बराबर है, तो ये लैंड नहीं हुआ था, ये रनवे में ही बंद हो गया। और यहाँ पे 1009 लोअर से ट्रेड करता तो ही लैंड होता फर्दर। तो 7 जनवरी 2020, 9 जनवरी को यहाँ पे ये it is closed with runway and it could not fall further. So prices stopped falling and started rising in 7 January 2020 by missing out this 1009 to trade on lower side, right? और ये 1009 यहाँ पर भी आया होगा 28 फरवरी को, लेकिन वंस अगेन यहाँ पे लैंड नहीं हुआ। फिर वापस जितने भी रनवे के प्राइस वो छोड़ दिया था, लैंड होने से बच गया था, लैंडिंग मिस हो गया था अर्लियर पीरियड में, तो आज भी 1009 जो है ऐसा बनाया है कि ऑन 18 जनवरी 1009 इस प्लान में आ रहा है, जहाँ भी है इस अपने 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 ट्रेडिंग प्लान में 1009 दिख रहा है। अगर वो 1009 यहाँ दिख रहा है अबो FC 100%, तो FC 100% लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही लैंडिंग बताएगा। अगर 1009 बिलो FC 100% है तो FC 261.8 लोअर साइड ट्रेड किया तो ही लैंड बताएगा। इसी तरह से इसका जो तेजी का रुख जो है उसको पकड़ के रखा, और देखो वहीं से लैंडिंग मिस हुआ। पुराना 2020 का लैंडिंग मिस हुआ, तो शायद हमने 14 जनवरी के आसपास देखा, एंड वहीं से इट इज बाउंस बैक। ठीक है ना, इसके लिए ये सब हमने पूरा कंप्यूटराइज ही कर दिया। ठीक है ना, यू आर राइट, आपकी क्वेरी सही है, आपकी क्वेरी सही है, बट दिस इज हाउ जितने भी पुराने रनवे छोड़े हुए हैं, तो वो जहाँ पे लैंडिंग मिस हुआ था, तो वो वापस जब भी वो भाव आएगा, वापस जब वो रनवे आएगा, तो पुराना फ्लाइट ही वेट कर रहा है रनवे पे, वही लैंड नहीं हुआ,
तो अब नया कहाँ से लैंड होगा? दिस इज द लॉजिक। ठीक है ना? ये समझाया ही नहीं है, एक दो बार समझाया था, बट ये नहीं समझाया, ये नहीं समझा सकते एक्चुअली। आप समझो, समझा भी दिया ना तो आप फॉलो नहीं कर सकते, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सिंपल सिंपल रखा है, 5%, 5%। नहीं नहीं नहीं, दिस इज वो इस तरह से समझ के कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है ना? देखो यहाँ पे लैंड बता देते ना उमेश, तो क्या हो जाता है? हम्म हम्म। ठीक है ना? Anyone else? हाँ चित्रंजन। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस यस चित्रंजन। यस सर। सर मैंने आपको एक मैसेज भी किया था, वो रिलायंस का सर, मेरे को आई वांटेड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बेटर। तो क्या क्लैरिटी के लिए हम वेबिनार में केस स्टडी के साथ रहे ना, तो अच्छा है। हाँ मुझे व्हाट्सएप में चैटिंग करना है ना, समझ में नहीं आता है। यू आर गुड एट इट। राइट सर। बोलो क्या पूछ रहे हो रिलायंस में? सर मैंने आपको भी किया था, आपका जो मैसेज आया था, नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस इज 2095 कंटिन्यू टू राइज। हम्म सो उसमें मैंने आपको ये कि ये डबल लैडर जो है occurred, however since 2044 is already traded on the higher side आज के दिन में। और स्नेक का जो हाई था 2018, ये ट्रेड कर लिया ना, तो हाँ बाइंग तो आई गई। सर, इसमें जो अपना 5% गेन का जो कॉन्सेप्ट है सर, that will applicable only after it trades 209, और नहीं नहीं, we ऐसा नहीं can। है। अरे यार, मेरी गलती हो गई, मैंने लिख दिया। यहाँ से मल्टीपल लेटर्स बना। हाँ हाँ रिसेंट के पहले का हाई 2018 है, वो ट्रेड किया, सर। पीसीए से बंद हो गया, यस बराबर ना? तो यस वो सर। 5% तो वो तो है ही, वो एक बात अलग है, वो चैप्टर हो गया। ओके अब जिसने मुझे मैसेज किया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में शी इज एन इन्वेस्टर, और मैंने अपने हिसाब से लिख दिया कि 2095 इज द नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट। 2095 ट्रेड करेगा तो और 5-10% और दे देगा। 10% राइट। से कम नहीं। 2095 जब भी ट्रेड करके पीसीए से बंद होगा, इसके लिए मैंने लिखा नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस इज 2095, जो यहाँ से निकाला मैंने। यस अब इसे कंफ्यूज मत हुआ करो यार, कि तो मुझे लिखना थोड़ा डर लगता है फिर। नहीं यहाँ नहीं ये सर, जो समझ गया। रूल है ना, इसमें कोई बात ही नहीं है कि मल्टीपल लेडर अकर होने के बाद प्रीवियस नेक का जो भी रिसेंट हाई था वो हायर से ट्रेड किया, तो 5% है, उसको 2095 को कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक्चुअली ऐसा करना था राइट कि जब पूरा 95 आता है ना, तो अब मुझे लिखना चाहिए था। बट मैं इसलिए भी लिखा कि भाई यहाँ से 5% कितना होता है, मैंने कुछ गिना नहीं। तो 2095 आता है तो एक बार एग्जिट भी करना है, एंड 2095 ट्रेड करता है तो रीइनिशिएशन करके फिर चुपचाप बैठे रहना है, फिर कुछ करना ही नहीं है। फिर 5% 10% नहीं देखना है, बैठे रहना है। उस तरह राइट से मैं राइट। बाइंग विल बिगिन अबाउट 2095। गॉट इट। ठीक।
सर इसके बाद सर एक ऐसा था, आपने जो आज एक मैसेज भेजा था सर, उसमें काफी सारे वो स्क्रिप्ट्स थे जिसमें 5% रिसेंट हाई लैडर से। पार्टिसिपेंट ने बना के भेजा है। अच्छा, हाँ मैं हाँ उस मैसेज सर। पे जाऊं, दूसरी बात में जाऊं, चितरंजन, तब तो ये जानना नहीं चाहोगे व्हाट इज 2095? हाँ सर, जानना चाहता हूँ। तो आपको खुद को ऐसा होगा ना कि सर बोलो ना सर 2095, आप कैसे बोलते हो व्हाट इज द 2095? तो आई कैन टेक यू टू नेक्स्ट लेवल। नहीं तो बस So I क्वेरी want to सॉल्व understand. चला गया। वो दो तरह की एग्जाम्स होती है। वो एग्जाम पेपर में 10 मार्क का पेपर लिखा और 8 मार्क मिल गया, वो स्कूलिंग में थोड़ी है हम लोग। अपने को समझ में जाना है, समझ में कि क्यों Yes. 2095 और कैसे बोलते हो सर 2095 ट्रेड करके पीसीए से बंद हो गया तो और 10%, 15%, 20% कुछ भी दे सकता है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं सीखना है। सीखना है ना सर, आपको सीखना है। नहीं पूछा ना आपने। तो अभी पूछ रहा हूँ। यही तो क्वेरी होती है ना। क्वेरी कैसे होनी हाँ चाहिए मालूम है? तो यहाँ से है ना, रिलायंस इतना क्यों ये दो भाव के बीच में रहा, ऐसा क्यों हुआ? वहां से सर हम वो हिस्टोरिकल पे देख रहे थे 2018 से, इसमें ऐसा क्या हो गया कि सर ये 15%, 20% कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बढ़ता गया? सर ये सब हमको सिखाइए ना, हमको 2%, 3%, तो इसके पांच लिए परसेंट 20, आपने जो भी 2095 बोला, इसके लिए मेरे इसमें थोड़ा सा वो ये आ गया था कि ये समझना था मेरे को कि क्या है मैं तो। जवाब दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, बट मुझे वो देने का भी मन कब करेगा जब इस तरह की पैशनेट क्वेरीज आएगी। हम्म। समझ रहे हो? अदरवाइज राइट हाउ सर। आई बी मोटिवेटेड टू गिव। तो मैं मोटिवेशन की बात छोड़ो चित्रंजन, मैं डरता हूँ मालूम है कुछ ज्यादा बोलने में। घबराहट सी होती है कि कुछ बोल दूंगा तो उसका कुछ गलत मीनिंग नहीं निकल जाए, कैसे यूज करेंगे। ये 2095 जो है हम्म। और उसके पहले का जो बॉटम है 1835, राइट। राइट? और ये 1835 एक बार आया, हाँ। 2 बार आया, 3 बार आया, मतलब 3 बार टूटा। थ्री टाइम्स इट हम्म। स्टार्ट फॉलिंग, बट 1835 जो था उसको ट्रेड नहीं कर पाया। मतलब उसको 1835 लोअर के साइड नीचे, में एक पेपर। मतलब उसको 1835 के नीचे नहीं जाना है, तो उसको किधर जाना है? ऊपर ही 2095 जाना, जाना है। जो आपने और जस्ट समझाया था सर ट्रेड इसमें। तो रिलायंस का बॉटम प्राइस ही 1835 हो जाएगा। हम्म। 2095 जब भी ट्रेड कर लिया उसके बाद में 2, 4, 6 महीने के बाद में जब भी वापस कभी फॉल आया, कुछ हुआ, करेक्शन आया, तो वो 1835 के ऊपर है, तब तक वो अच्छा ही एक बहुत लॉन्ग टर्म व्यू बन जाएगा 2095 ट्रेड करने पर। उसमें एक और भी बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इस तरह से मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, मैंने जस्ट शेयर कर लिया कि ऐसा बहुत कुछ है शिक्षा में जो पे हमको विशुद्ध बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, बट जो भी मिलेंगे सीधा 15%, 20% के होंगे। तो वही ट्रेड करनी चाहिए, राइट। भले ही साल में 5 ट्रेड मिले। ये क्या है रिलायंस में, यहाँ पे यहाँ 1895 से 1980 और 1940 से ये 2038, ये सब कुछ मिस करना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, जो होता है वो होने दो। हम्म। हाँ नाउ ये आप देखो तो सही कि मल्टीपल लेडर बना के फर्स्ट टाइम रिसेंट हाई ट्रेड किया है कितने टाइम के बाद। यस सर, और ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के बाद उसने ट्रेड किया है। ना यहाँ पे नहीं। मल्टीपल स्नेक ढूंढो पहले। मैं इसको बोलते हैं जीना। क्वेरी सॉल्व सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं ना, वो उसके साथ जिए नहीं, उसके साथ रहे नहीं। दोस्त के साथ बैठते तो 5 मिनट में उठ के थोड़ी भागते हैं, बैठते हैं ना, गपशप करते हैं। ये गपशप करना सीखो। ये मल्टीपल स्नेक था, बराबर है। हम्म। और ये हम्म। मल्टीपल स्नेक की ताकत नहीं थी कि पुराना 1798 लो ट्रेड कर पाए। हम्म। इतने मल्टीपल स्नेक आ गए, लेकिन 1798 ट्रेड नहीं किया।
सर नो फिर अब जब Yes. मल्टीपल लेडर दिस मल्टीपल लेडर यहाँ से बने फिर स्नेक के पहले का भाव 2369 ये ट्रेड नहीं कर पाया सर। नहीं करता जी। तो ठीक है वापस मल्टीपल स्नेक जितने भी आए वो रिसेंट लोग ट्रेड करता गया वापस इसके बाद मल्टीपल लेडर बना ही नहीं देखो ओनली वन लेडर ऑन फोर्थ। यहाँ कितनी बार उसने कोशिश की लेडर बनाने की स्टॉप एंड वी टू सेल हो गया राइट। फिर एक लेडर दिसंबर को बना बट मल्टीपल लेडर ही नहीं बना पा रहा है मोर देन वन लेडर यहाँ पे फिर लेडर बनाया बट हियर 15 जनवरी को फर्स्ट टाइम मल्टीपल लेडर अकर हुआ लेकिन यहाँ पे भी मल्टीपल लेडर अकर होके प्रीवियस स्नेक का जो हाई है 2018 ट्रेड नहीं कर पाया था तो सर नो जो आज ट्रेड किया तो कितने टाइम के बाद उसने मल्टीपल लेडर बना के फर्स्ट टाइम 2018 उसने ट्रेड करके डीसीसी पीसीएस से बंद हो गया। सर ये ऐसा जब भी सिचुएशन होता है अभी ये जिसमें जैसे हमने देख लिया ये 20 जो इसका ये है 2095 सर ऐसे सिचुएशन में हेलो सुन रहा हूँ से 5% का समझो मैंने ट्रेड लिया और उसके बाद भी मेरे को मालूम है कि बाकी है तो मेरे को इधर ये स्क्वायर ऑफ करना जरूरी है सर आई कैन होल्ड दैट ट्रेड। तो यार 5% का ही सिखाया हुआ है तो 5% में निकलते रहो ये 2095 वगैरह जो मैंने आपको बताया ये इसलिए बताया कि भाई आप 5% से आगे लेके आपकी इच्छा हो मैंने सिर्फ एक लालच दी आपको और ज्यादा सीखने की। राइट ठीक है सर। ये और एक सब ऐसा था इतना समझ में आता है ना चित्रंजन इतना समझ में आता है कि सब नॉलेज इतना नॉलेज बोझ बन गया अभी मेरे ऊपर आई एम नॉट एबल टू गिव एंड आई वांट पीपल टू टेक इट फ्रॉम मी आई एम डेस्परेट टू गिव। आई नो सर। अच्छा बोलो नेक्स्ट। सर नेक्स्ट आपने जो निफ्टी व्यू का जो आज मैसेज भेजा था ना तो मैं थोड़ा निफ्टी अभी आई हैव स्टार्टेड रीडिंग एंड यू नो कीपिंग अ वॉच ऑन दैट so I wanted to understand what it exactly how to you know relate with this and what is the आपने जो आज उसका किया था because it did trade I'm tracking it did trade this level on the higher side 4 पॉइंट से रह so गया what is 653 का नेक्स्ट लेवल जो है हाँ वो सेटिंग था अच्छा नहीं 736 था हाँ ठीक है बोलो वीकली में 4 पॉइंट से रह गया पीसीसी पे ट्रेड करना ठीक है आगे कर देता हाँ बोलो क्या क्वेरी किया ये 673 था पीसीसी पे वहीं तक आया। तो आपने ये जो ये व्यू जो ये ऐसा भेजा है so I just want to understand इसका how does one relate to it and how to because I'm new to this ये so I to understand देखो कुछ नहीं है मल्टीपल स्नेक का रिसेंट हाई 14653 है जो हम हमेशा रोज ही बात कर रहे हैं 653 to trade on higher side along with ladder अगर ये ट्रेड नहीं कर पाया और समझ लो ट्रेड करके अगर ये स्टॉप एंड व्यू सेल हो गया तो इसका इतना स्मूथ राइज है वो बहुत मुश्किल है 653 हायर से ट्रेड करके किसी से बंद हो जाता है लेडर से बंद हो जाता है तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन मे भी एक बार बहुत बड़ा पोज आएगा। okay now it has to trade tomorrow so it will be 14715 right मल्टीपल स्नेक का जो रिसेंट हाई है उसको हमने रेस्पेक्ट किया है बस और कुछ भी नहीं है। okay क्योंकि सर यूजुअली मल्टीपल लीडर बना के या कम से कम सिंगल लीडर बना के वो रिसेंट हाई ट्रेड करता है यहाँ पे बिना लीडर बनाए ही कैसे रिसेंट हाई ट्रेड करेगा ना यू शुड ट्रेड द मल्टीपल लीडर एक सिंगल लीडर तो बनावे कम से कम right
लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स टुमारो। कल फिर और ऊपर चला गया, 715 हो गया LCT भाई। ठीक है, बोलिए। लेकिन अपने को जब तक डेली में फ्रेश सजेशन नहीं मिलता है, तो लिखा हुआ भी डेली में फ्रेश सजेशन नहीं मिलता है, तब तक बैंक समझ के रखो। राइट। नेक्स्ट सर आपने जो आज वो जिसने whoever was tracking that आप जो participant who's tracking all those scripts for the 5% ladder. So I went through almost all those scripts. I studied those ये ladder उसका ये, तो उसमें ऐसा था कि काफी सारी स्क्रिप्ट्स में था 261% ट्रेड किया था इन दी करंट स्टेट। ट्रेड किया था या 261.8 क्लाइंबिंग बाय था? वही में कंफ्यूजन है सर उसमें, क्योंकि आप हमने जो लास्ट टाइम थोड़ा उसमें जो मैंने क्लाइंबिंग दोनों में बहुत फर्क है। तो मैं आपको एक आध स्क्रिप्ट बताऊं उसकी, उसमें to range further. Can I tell you one of the scripts that I have written it down? तो मेरे पास है वो उसका सर BEL है। हाँ BEL। उसने खाली इतने ही देखा होगा, मल्टीपल लीडर और रिसेंट हाई ट्रेड किया, सौदा करते हैं होगा, मतलब रिसेंट हाई देख के वो एक अलग बात। आप बोलो कौन सी डेट? ऊपर जाना पड़ेगा सर। तो ये दो लैडर्स है इधर नीचे, 3112 का है और का बराबर है एक 3112 और 11 123.20। हाँ और उसने ट्रेड कर लिया 1 जनवरी को। यस सर। बोलो क्या So ट्रेड? one of these ladders जो occurrence हुआ, one of these ladders 261 उसने ट्रेड किया था, तो वही मेरे को आपको जो आप जो बोले ना सर क्लाइंबिंग बाय और ये 123.20 ट्रेड किया, तब क्या 261.8 आया है क्या? नहीं समझा मुझे। अकॉर्डिंग डे में नहीं आया है। और समझ लो कि 31 दिसंबर को अगर 261.8 आया है, राइट, तो दिस 261.8 ट्रेडेड ऑन हायर साइड। हाँ अलर्ट कॉलम में जाके देखना कि जहां जहां क्लाइंबिंग बाय 261.8 है और ग्रेटर देन लिखा हुआ है, वहां पे ग्रेटर देन साइन मार्क्ड है इस तरह से कि वो फिर वो चलता ही रहता है, क्रेजी घोड़ा हो जाता है। ओके सर। 1.8 सेल है, उस दिन का फिर पीसीडीएस लोअर साइड ट्रेड करता है, इट कंटिन्यूज टू फॉल वेरी बैडली। ऐसे अकरेंसेस बहुत कम मिलते हैं, बट मिलते हैं तो लड्डू जैसे होते हैं। So this is tradable, अगर ये ऐसा ही रहेगा तो it is tradable। हाँ ट्रेडेबल ना, क्लाइंबिंग बाय 261.8 होना वो एक अलग बात है, तो क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर लेना वो एक अलग बात है। ओके सर, ठीक है ना। और ठीक है क्लाइंबिंग सर। बाय आके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो घूम ही गया वहां से, देन फिर उसका बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकरेंस पीरियड में स्टॉप हो जाता है। तो देखो सब कुछ यहीं पे खुला चिट्ठा पड़ा है यार। करूंगा सर मैं वापस इसको इस टाइम। चलो कुछ नहीं है, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 है। खाली सवाल पूछो, व्हेन प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर, व्हेन 107.80 ट्रेड्स ऑन लोअर साइड, व्हेन इट विल स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्ट राइजिंग, व्हेन 116.45 ट्रेड्स ऑन हायर साइड। तो यहाँ पे पोज है, टर्निंग पॉइंट है। 107.80 लोअर साइड ट्रेड नहीं कर रहा है और 116.45 हायर साइड ट्रेड कर लिया, तो 121 123 की ट्रेड कर लिया, तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिंस। ठीक सर।
यहाँ पे भी Got देखो it. क्लाइंबिंग 1.8 हायर से ट्रेड किया है, तो प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलोइंग, राइजिंग व्हेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर Rising. 10-20 trade on higher side, when it will stop Continue. rising only when 95 70 96 or at least 100 तो लोअर साइड ट्रेड करे, क्योंकि पीसीएस ट्रेड 100 करेगा आएगा. It is hovering around 104 104 104 106 105 और जे जैसे 110 रुपया 20 पैसा 110 रुपया 20 पैसा ट्रेड किया है कर लिया, बढ़ Yes. के 110 ही आया, वापस 110 ही आया और बढ़ता ही रहा और 110 ही आया. Who triggered the rising price? 110. 110. ठीक है ना. Got it. इसलिए कहते हैं ये करो. किसने बाजार, कहाँ से बाजार बढ़ा, किसने बढ़ाया, 3-4 सवाल ही है. इससे बात करना सीखो, बस इतना ही और कुछ भी नहीं. बात करना सीख जाओ. मैं हर वेबिनार आप मेरे सुनोगे तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, मैं एक ही बात बोलता हूँ 4 सेंटेंस ही बोलता हूँ. prices are rising or falling, when it will continue to rise, when it will stop rising and start falling. Start falling. और दूसरी बात मैं ये करता हूँ, तो बढ़ रहा है तो किसने बढ़ाया, तोड़ रहा है तो किसने तोड़ा, Trigger उसका. कहाँ ट्रिगर मिला, ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ से था, उस ब्रेकआउट पॉइंट तक एक बार वापस आता है बाजार. 110 ब्रेकआउट पॉइंट था तो उसको 5-10% जो भी बढ़ना था बढ़ के वापस एक बार आया. आता भी है ना तो बहुत शार्प आता है, हमेशा पैनिक क्रिएट कर देता है एकदम, और वहीं पे बंद भी हो जाता है हमेशा 110 के पास आके. राइट सर. जैसे हम लोग अभी रिलायंस में देखते हैं 110 कहाँ ट्रेड कर रहा है 110 के नीचे. फिर ड्रिफ्टिंग सेल आया 261.8, 110 वहीं पे बन गया. यहाँ से पूछो किसने बाजार को बढ़ाया, 123.20 ने बढ़ाया. तो जब भी 123.20 बढ़ा, यहाँ से ट्रेड कर लिया 123.20. तो कहाँ से नया न्यू राउंड ऑफ बाइंग कहाँ से आई, तो 123.20 से. ये लो 123.20. ठीक है. यस सर, थैंक यू. दिस ऑल दिस कैन नॉट बी कंप्यूटराइज्ड यार, ये सब समझ है. और मुझे तो इतना समझ में आता है कि 5% से आगे जाना है, 10 15 20% की अगर वो है तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ज्यादा. तो ठीक है, नहीं कर सको तो भी कोई बात नहीं, 5% भी लेते रहे तो बहुत है यार, बहुत मस्त किटी बैग है. ठीक है. सर लास्टली मेरा एक था, आपने जो आज मैसेज में भी लिखा था ये SNR टू सेल अबाउट BP इन वीकलीज, उसका कुछ आप लेने वाले हो? का मैसेज था, if he is here we'll ask him. ओके. गड़ा जो पूछते रहते हैं ना, he is not there today in the webinar. बात करूंगा मैं उनसे मैं, एंड उसका भी कन्वीनियंट टाइम, मेरा भी कन्वीनियंट टाइम रख के प्रेजेंटेशन रख देंगे उससे. चलेगा सर. You have to ask him, you have to request him. Okay. करेंगे तो ठीक. Shall I leave the webinar? Anyone else? Shri Krishna. हाँ चेतन बोलो. Hello. Yes, good evening. yes. Very good evening. Sir, Apollo tires. I just want to share कि हमारी understanding right છે કે wrong છે? Right જ છે ભાઈ, સમજી ગયો તમે શું પૂછવાના છો. Sir, can you just open reversal buy sell please? Oh sorry. Can you take slightly ऊपर? ऊपर. अजी हाँ, yeah. So sir, on 6/1 એટલે on 7th the reverse shop and reverse buy has come into
action. And on Hmm. 12th, there is a snake. But it is just a retracement till support of 182. Okay. Hmm. If this supports straight on a lower side, it will go to the next master support. Sir, can you take slightly up? For my understanding, yeah. So agar jo 182.30 which has been traded, if you go down on a lower side, it has come to 175, and from there it has reversed within. So can we assume, can we say that once the reversal buy या stop and reverse to buy action suppose trade on a lower side, the next support is stop and reverse to buy या reversal buy no support, next major support? इसको अलग तरीके से समझते हैं, सिंपल वे में सब समझ सके वैसे। बाइंग की हाँ। शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से, दिस इज द फर्स्ट अकरेंस। yes 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 फर्स्ट अकरेंस जब हुआ तो व्हाट वाज द फर्स्ट सपोर्ट? 175.70। perfect perfect so that becomes a strong support। yes तो मैं अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसिव यू नो, तो 175.70 आता है कभी भी, इट इज ऑल बाइंग मैं ले लूँ। अपॉर्चुनिटी। yes 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 तो ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये पार्किंग करने वाले हो, पोजिशनल हो, 50% yes इन्वेस्ट करना है, 50% वापस कभी भी टूट सकता है, तो यू नो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के लेंगे। और यहाँ पे 175.70 आता है और वहां से एक लेटर बनता है, तो 175.70 भी हाई बना था 198.75, वो तो ट्रेड कर ही लेगा, वो उस दिन 18 वो जनवरी भी समझ। सर वो मैं सो मारो सर सेकंड पॉइंट आ जातो on 18th 1 2021 174.50. if you go with a Sarrier also, if someone wants to blend also, it was available at a key low as well as the strong support. So I think at 174, without looking at anything, one should just buy and hold it. I feel, I may be wrong. नहीं समझ बैठा हो ये चेतन तो न समझे, सॉफ्टवेयर जोता हो ये नहीं तो समझे। हाँ January Okay. नजरिए से the way it has fallen, if you are continuously looking at the screen, इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ दो लैपटॉप सिस्टम होना चाहिए, एक में स्क्रीन चालू है, बंद है, स्लीप मोड में चला गया, जाने दो, सॉफ्टवेयर के साथ ज्यादा रहना चाहिए, Yes, 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 you are right. तो स्थिति समझ में आएगी और That, पैनिक भी नहीं हो। चलो हाँ, टूट गया 175 तो तोड़ने दे, देखेंगे। एंड ये यहाँ पे नहीं हुआ। आप चेतन थोड़ा हिस्टोरिकल में भी जाके देखो, it नहीं works सर wonderfully। ये नहीं सर, I know really well because sir I have मतलब with my limited time I have studied not in this scenario as well, पण कहने कि I just wanted to confirm कि अगर एक support टूटे तो second support is the next major support है। सर just one more simple silly 6 जुलाई को ये टेक ऑफ हुआ। sorry sir 6 जुलाई sir your voice is cracking sir, I can not hear you। ने भी सपोर्ट है 6 जुलाई तो सबके पास। Sir, your screen is stuck, sir। 6 जुलाई ब्रेक हो रहा है चेतन। हाँ sir, yes sir। So can you hear me now? हाँ बोलो। Hello। Yeah। यस यस Sir, yeah sir, just one more simple हाँ बोलो, query। सुन रहा हूँ। Sir, can you open Hind Petro daily में? Hind Petro। ठीक है, नहीं नहीं वॉइस ब्रेक हो रहा है, फिर बाद में बात। ठीक है, वॉइस done ब्रेक है। हो रहा है यार। Okay, 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 okay sir। Okay, sure, sure। लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू, ट्रस्ट यू ऑल, टेक केयर।